Hi friends, this side Vijay Kumar and you are watching Average Classmate YouTube channel. Welcome back to another episode of Excel and Power BI together. In our previous video, we have seen the simplest way to create dashboard in Excel and Power BI as well. I am glad that you guys liked that video and the comment which I got on that video means a lot to me and I am very much charged up. If you haven't seen that video yet and you directly landed to this video, then I highly recommend you to watch that video first and then come back to this video and continue with me. Because there I have discussed various important aspects of Excel and Power BI. Link of that video is available in the description below. You must go and watch that video once. Today we have got a lot of ground to cover, so without any delay, let's jump into the Excel file where we have unstructured data from which we need to extract numbers or values. So I am in the Excel file. If you can see here, we have a text string where we have department, salary and that person name. Friends, I know that it is a small set of data, but by and large the process will remain same even if it is a large set of data. Here we have some numbers, the person name or the department, and see here one more zero is available after MIS. Okay, so which means it's not Vikas salary is not 1000, it is 10,000. So 10 we need to bring from here also. So whatever is number available in this cell, that number we needs to bring into this cell. If you see guys carefully here, we do have some special characters like percentage and forward slash, and I have tried to make it a bit more complex so that we can provide a better solution. So if you see here, we have some extra spaces. Okay, and after this department, HR department, also we have some extra spaces. We are going to see three solutions to solve this problem, and I want you to tell me which solution you like the most. Before we start building our solution in Excel, let me give you a brief introduction of our three solutions and what is the advantage and disadvantage of each solution. For that I have a small PPT. Let me just open that PPT for you. Okay, so here is the PPT. Now let me give you a brief introduction. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा क्लीनिंग एपिसोड नंबर 1. In this episode, today's topic is going to be extract number. So three different solutions we are going to see how to extract numbers. So first solution would be Excel, then second VBA, and the third one would be Power Query. Now let's see the Excel solution first. One should have functional knowledge of Excel. You should know how to use functions inside another function, which function is used for what purpose, and so on. So functional knowledge you should have, then you can go with this solution. You know, the advantage of this solution is that it will get updated instantly on your source data change. We will discuss and see in detail when we build this solution. But this solution has one drawback. As it will be an array solution, therefore it will decrease performance of your file if you are working on a large data set. Now let's talk about our second solution, which is VBA solution. It is easy to use from a user point of view and it can be a great time saver. It will also get updated instantly whenever source change. It will increase your file's performance. No matter how big your data set is, it will increase your file performance. This solution has one drawback. When you want to share your workbook, then you have to save as macro enabled workbook. Right now, I don't want to go in detail, but as and when time comes, I will talk about in detail. So let's move to our third solution, which is Power Query solution. Now this solution also required functional knowledge because the problem which we are dealing today, to extract numbers from a text string, cannot be easily achieved from graphical interface of Power Query editor. So once we build this solution, you will understand and we will discuss
in detail. And the second point, it requires refresh button click. Like other two solutions, they were getting updated on instant basis. This solution will not get updated instantly. User has to click on refresh button. And the advantage of this solution is that it will increase the performance of your report no matter how big your data set is. And you know, this solution gives you the flexibility to connect a wide range of data source. This solution is one of my favorite solution. Now that we have discussed all three solutions, now the time is to build the first solution in Excel. So let's go into the Excel file. गाइस, एक्सेल के फॉर्मूले को मैं इतना आसान बनाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग उसे समझ पाएं। रिक्वायरमेंट हमारी क्लियर है, जो भी हमारे पास इस सेल में नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पर पॉपुलेट कराने हैं, राइट। अब मुझे ये निकालना होगा कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर टोटल कितनी लेंथ है। अब देखिए, लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन है लेन, LEN, लेन। ये हमें दे रहा है 12। सिमिलरली अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ टॉप टू बॉटम, तो देखिए मुझे हर किसी सेल से के अंदर कितनी लेंथ है वो मुझे यहाँ पर पॉपुलेट करके दे रहा है, विच इज गुड। नाउ अब आपको पता चल गया हमें करना क्या है। तो 1 से लेकर 15 लेंथ तक हम चेक करेंगे कि क्या कोई पर्टिकुलर लेटर नंबर है या नहीं है, वो सब चीज चेक करेंगे। अब अभी आप देखेंगे कैसे चेक होता है। इसको हटा देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ फंक्शंस बिफोर लेन इनडायरेक्ट। अब देखिए, इस लेन फंक्शंस को हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर। कैसे यूज करेंगे, मैंने लिखा 1, डबल कोट्स में आपको 1 लिखना है, एंड की, एंड सिंबल के साथ मुझे इसको जोड़ देना है। तो 1 से लेकर इस लेंथ तक, अब जैसा कि इस पर्टिकुलर सेल के लिए 12 है और हर किसी के लिए अलग अलग होगा, तो उस तक हमें इनडायरेक्टली ये चेक करना है। अभी फिलहाल के लिए ये मुझे दे रहा है कैन नॉट कैलकुलेट ए फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम, क्लिक ओके। नाउ वी नीड टू we need to wrap this indirect function also in row formula. There is a function called row that gives, actually now see what it is giving me, serial number from 1 to 12. रो फंक्शन क्या करता है एक बार समझ लेते हैं। देखिए, रो फंक्शंस, अगर मैं इस पर्टिकुलर रो में रो फंक्शन को लगाता हूं और उसके अंदर कोई रेफरेंस में नहीं देता हूं और जस्ट एंटर प्रेस कर देता हूं, तो मुझे वो 2 देता है। 2 व्हाट, आई एम इन सेकंड रो, सो रो नंबर, इट गिव्स मी द रो नंबर। अब आप लोगों को पता आइडिया हो ही गया है कि देखिए यहां पर हमने रो एज ए रेफरेंस हमने दे दिया है 1 टू लेंथ क्या थी इसकी 12, तो इसीलिए इसने इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग 2 इसने रिटर्न किया 1 से लेकर 12 तक सीरियल नंबर। वेरी गुड। सो इससे हमारा काम होने जा रहा आसान। इस देखिए, अभी इसकी जगह पर हम एक और फंक्शन यूज भी कर सकते थे अगर हम चाहें तो, जिसका नाम है सीक्वेंस। अब देखिए, सीक्वेंस फंक्शन हमारे पास है। ये आफ्टर ये लेटेस्ट वर्जन में आपको मिल जाएगा ऑफिस 365 के अंदर, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर ये फॉर्मूला फंक्शन अवेलेबल है। इसमें क्या करना है हमें, अब देखिए यहाँ पर मुझे लेन देनी है इस सेल की। अब देखिए रिजल्ट दोनों के सेम है, राइट। ओके, सो फॉर अ टाइम बिंग मैं इसको भी साइड में रखता हूँ, ठीक है। अभी हम इस पर बिल्ड करने जा रहे हैं सॉल्यूशन को। अब एक फंक्शन में यूज करने जा रहा हूँ मिड टेक्स्ट। देखिए, ये होते हैं आर्ग्यूमेंट, जिसे आप बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट, जिसे आप बोल सकते हो पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर्स। देखिए किसी भी कुछ भी बुला सकते हैं आप इन्हें। तो टेक्स्ट मेरा है इस सेल में, कोमा, स्टार्ट नंबर, यस स्टार्ट नंबर मैं चाहूंगा यहीं पर, जो अब 1 यहाँ पर सीरियल नंबर जो भी आ रहा हो 1, ठीक है, कोमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने मैं पिक करना चाहता हूँ। अब जैसा कि आपको पता है सबको, 1 कैरेक्टर्स हम पिक करना चाहते हैं। इसको चेक करो, इसको चेक करो, तो इसीलिए ये लास्ट में लिखा है मैंने 1। सो अब एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए इसने क्या किया, इसने देखिए हर लेटर को अलग अलग सेल के अंदर शो कर दिया, विच मीन्स एक एरे क्रिएट कर दिया गया है इस फॉर्मूले के अंदर ही। और जो हर सेल को मतलब इस सेल में जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसको चेक कर रहा है कि अब हम फैच करने वाले हैं सिर्फ इन नंबर्स को,
ठीक है, और उसके लिए क्या लॉजिक लगाने वाले हैं हम। अब देखिए, क्योंकि ये टेक्स्ट है, देखिए लेटेस्ट वर्जन के अंदर ये ऐसे हमें रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा देता है, जो कि विच इज वेरी गुड। बट ओल्डेस्ट वर्जन पे आपको क्या करना होता था, यहाँ जाकर F9 की प्रेस करना होता था। जब आप F9 की प्रेस करते थे तो आपको रिजल्ट इस तरह से दिखता था। ठीक है, अब जो कि इजी हो गया है हम लोगों के लिए देखना समझना कि क्या है रिजल्ट। बट एनीवे, अगर आप यहाँ भी देखेंगे, या आपके पास अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका रिजल्ट यहाँ पर ऐसे शो करेगा, और एंड के अंदर आपको रिजल्ट प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, क्योंकि ये एक एरे फॉर्मूला है। अब देखिए, और बिकॉज ये एक एरे फॉर्मूला है, इसीलिए हमने देखा था कि एक्सेल सॉल्यूशन जो हम बिल्ड कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देगा जब आप एक लार्ज डेटा सेट पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमने प्रेजेंटेशन में देखा था ये पॉइंट। ओके, तो अब देखिए, अब बात करते हैं इसकी। बट अभी हमारा स्मॉल डेटा सेट्स है, और ये 20,000 30,000 40,000 50,000 रो तक भी डेटा है, तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है, परफॉर्मेंस इतनी हैम्पर नहीं करेगा। बट हाँ, जब लार्ज डेटा सेट्स है, अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, लार्ज डेटा सेट में मतलब बहुत बड़ा डेटा सेट। ठीक है, ओके, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, जो कि क्या करेगी इसे। अब इसमें मैं प्लस कर सकता हूँ 0 को, या इनटू कर सकता हूँ 1 को, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, एक जस्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करने के पर्पज से। अब देखिए, जहां पर भी जीरो ने जीरो को प्लस किया गया जब टेक्स्ट के साथ, यहाँ पर एच था, यहाँ पर आर था, यहाँ पर अंडरस्कोर था, तो वहां पर वैल्यू एरर आ गया, विच इज फाइन। और यहाँ पर जहां पर नंबर है, देखिए वहां पर ऑटोमेटिकली वो नंबर आ गया। तो बस अब हमारा काम कितना आसान हो गया, आप लोग समझ ही सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, जो कि है इफ एरर अगर ये वैल्यू है तो मुझे दो, अगर ये नहीं है तो मुझे ब्लैंक दे दो। ठीक है ना जी। अब देखिए, काम हो गया हमारा डन। यहाँ पर हमें मिल गई है ये जो, अगर यहाँ पर अगर एरर है, जो कि एरर था, तो मुझे ब्लैंक दे दो, अदरवाइज मुझे एज इट इज नंबर दे दो। और नंबर हमें यहाँ से मिड फॉर्मूले के थ्रू हमें यहाँ से मिल गया है। ठीक है, तो ये पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो इस वीडियो को बार बार देखिए, रॉक कर देखिए, और इसको स्वयं से करिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसको करना है हमें एक सेल के अंदर शो करना है। अब यहाँ लगाने जा रहा हूँ मैं एक फॉर्मूला कॉनकैट। ये कॉनकैट अगेन लेटेस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, आफ्टर 2016 ये फॉर्मूला हमारे पास हर वर्जन में अवेलेबल है, और इसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर स्टार्ट एंड क्लोज ब्रैकेट, एंड देखिए मुझे मिल जाता है 3500। अब इस फॉर्मूले को मैं करने वाला हूँ टॉप टू बॉटम ड्रैग, और देखिए हर ऑटोमेटिकली हर फील्ड के नंबर्स मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं एक्सेल के फॉर्मूले के थ्रू। हाउ इजी इट इज एंड सिंपल इट इज। अब देखिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर आपको टोटल दिखाना है, हो सकता है रिक्वायरमेंट हो आपकी ग्रैंड टोटल। ठीक है, आपको यहाँ पर शो करना है, तो आप अगर सम फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू सम, तो देखिए क्या होने वाला है। देखिए, यू गेट जीरो, आंसर जीरो, बिकॉज ये है तो नंबर, बट ये एक्चुअली अभी इसका डेटा टाइप टेक्स्ट है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लेफ्ट अलाइन है, और देखिए टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है, और जो नंबर एक्चुअल में नंबर होता है वो हमेशा राइट अलाइन होता है। ये डिफरेंस होता है। देखिए ऑटोमेटिकली ये नंबर है 0, जो कि राइट अलाइन हो गया है, और ये सब टेक्स्ट है तो ये लेफ्ट अलाइन है। ये एक्सेल के अंदर आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बट इसको हमें इन दी एंड हमें तो इसे कन्वर्ट करना है नंबर में, तो कन्वर्ट करने के लिए वही सिंपल तरीका, प्लस 0 अर्थमेटिक कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, और डन। चलिए जी, तो ये हमारा पार्ट हो गया है। फर्स्ट सॉल्यूशन हमने बिल्ड कर दिया है। कोई आपका इसके अंदर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको, और जो भी आपको टेक्निक या सॉल्यूशन समझ नहीं आता है, आप उसे बार बार करके देखिएगा गाइस, एंड आई एम श्योर आपको ये समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। अब देखिए, अगेन अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं? इस फॉर्मूले के साथ। एक बार देख लेते हैं। यहाँ जाएंगे, और हम जाएंगे मिड के सेकंड पैरामीटर में स्टार्ट नंबर, और इसको कर देंगे यहाँ से डिलीट, इसको कर देंगे पेस्ट, जो हमने यहाँ से कॉपी किया है। ठीक है, और देखिए आंसर डन, आंसर सेम है, फॉर्मूला और छोटा हो गया है। ठीक है जी, तो दिस वे यू गाइस कैन perform this calculation. Now I don't need it, I can delete it, simple. Okay, that's all. If you want, you can use
टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन इंस्टेड ऑफ कॉनकैट फंक्शन। सो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, यहाँ करता हूँ पेस्ट, और सो इंस्टेड ऑफ concat I will write text join. So text join function start bracket delimiter. It actually is more flexible than concat function. With this function we can actually give a delimiter between these values if it is required, but in my case it is not required. I wanted to sum that value, so that is why. So I will double pass double quote comma the second parameter. Now if you guys are not able to see, let me put it here. So see here, first parameter, second parameter, and then rest other parameters. So second parameter is ignore empty cells. So well, we are only referring to one cell, so we don't need to say true, false, anything. Even if we can skip this, so by default it will take true only. Okay, and the third parameter will remain same, and then just close bracket and press enter. That's all, and here it is, and see the result. So you can see this way you can use text join function. Now if you are still confused why I did not put anything here, so let me tell you, it would be required when you are actually passing multiple cells values. For an example, to make it very simple, I will write dummy text here A B C. देखिए अब उस टेक्स्ट ज्वाइन के सेकंड पैरामीटर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेल में इन तीनों लेटर्स को कंबाइन करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन डेलीमीटर, मैं देखिए मैं डेलीमीटर में मैं दे देता हूं डैश, ओके, सो कोमा सेकंड पैरामीटर मैं लेट से स्किप कर देता हूं, थर्ड पैरामीटर्स एंड थर्ड पैरामीटर्स आई एम गोइंग टू गिव दिस रेंज। सो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हम एक सेल को रेफर कर रहे थे और यहाँ पर हम तीन सेल्स को रेफर कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर रेंज को हम रेफर कर रहे हैं। ये सेल्स एक से ज्यादा अगर सेल्स हैं तो वहां पर इसका बेसिकली इस पैरामीटर का यूज आ जाएगा। ये क्या यूज है भी देखते हैं। अब देखिए ए बी एंड सी, ठीक है, देखिए जी अब इनके बीच में देख रहे हैं आप इस डेलीमीटर से ये सेपरेशन है इन टेक्स्ट का। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर मैं डालता हूँ, अब देखिए अब मैं एक सेल को मैं ब्लैंक कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने एक सेल को ब्लैंक कर दिया, क्योंकि सेकंड पैरामीटर्स में हमने कोई भी ट्रू एंड फॉल्स नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू है, विच मींस एम्प्टी सेल्स को इग्नोर कर दिया गया है। अब मान लीजिए मैं एम्प्टी सेल को इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं फॉल्स और एंटर प्रेस कर देते हैं, तो देख रहे हैं आप समझ, आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू गाइज। देखिए ये डैश जो है दो बार आपको यहाँ पर दिख रहा है। इफ एनी टाइम यू राइट हियर बी, सो सी ऑटोमेटिकली इट विल get corrected. So this way guys, but in our case it was not needed, that is why I skipped this. Okay, hopefully it is clear to you guys. Now then we have seen the first solution to extract numbers from a text string. The time is to show the VBA solution now. For that हम क्या करेंगे, डेवलपर टैब में जाएंगे। अब देखिए जिन भी व्यक्ति के पास ये डेवलपर टैब इनेबल नहीं है, I can tell you that they are 10 times behind than the Excel expert. अब ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि इसी टैब में हमें विजुअल बेसिक एडिटर टूल मिलता है जो हमें हेल्प करता है हमारे सॉल्यूशन को बिल्ड करने में और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को इजीली परफॉर्म करने में। अब इस टैब को इनेबल कहां से करना है, उसके लिए हम जाएंगे फाइल टैब में, ऑप्शन में, कस्टमाइज रिबन में, और यहाँ पर डेवलपर टैब हमें मिलता है, इसको हम कर देंगे चेक और कर देंगे क्लिक ओके पर। इस तरह से हमारा डेवलपर टैब इनेबल हो जाता है। अब चलते हैं हम विजुअल बेसिक एडिटर की विंडो पर, और देखिए यहाँ पर हमें ये विंडो ऐसे मिल जाती है। अब इसका इंटरफेस कैसे काम करता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसको बताने की आवश्यकता है नहीं, बट अभी हम क्या करेंगे, इस एरिया में अपने कर्सर को रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में और एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। अब एक मॉड्यूल हमने क्रिएट किया है, अब इस मॉड्यूल के अंदर हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं जो कि हमारा होगा, आपने वर्ड सुना होगा UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हम आप इसमें लिखने जा रहे हैं।
पहले हमें समझना होगा हम वो फंक्शन क्यों बनाने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास एक्सेल में कोई भी एक डायरेक्ट फंक्शन नहीं है जो सीधा नंबर को एक्सट्रैक्ट कर दे फ्रॉम ए स्ट्रिंग। अब आप कहेंगे कि टेक्स्ट टू कॉलम हमारे पास एक फंक्शनैलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है जिसके बेसिस पे हम किसी भी टेक्स्ट को या नंबर को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ हाँ कर सकते हैं, बट टेक्स्ट टू कॉलम भी जब ही वर्क करता है जब एक कोई स्पेसिफिक डिलीमीटर सेम ही यूज किया हुआ होता है इंटायर कॉलम में। या मैं कह सकता हूं कि जब डेटा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, या इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कि टेक्स्ट टू कॉलम हमारे करंट केस के अंदर फेल हो जाएगा। आप यूज करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर भी टेक्स्ट टू कॉलम को फेल होता हुआ देख लेते हैं। हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट डी ई प्रेस करेंगे, डिलीमीटर में जाएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखिए इनमें से कोई भी डिलीमीटर अभी मेरे किसी काम का है नहीं, तो हम अदर्स में जाएंगे और यहाँ पर मैं सिंगल ही डिलीमीटर पुट कर सकता हूँ। 1 2 एंड 3 ये तीन ही रिकॉर्ड्स मेरे फैच होने वाले हैं विद दिस। सो देयरफॉर ये टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पर हमारी करंट सिनारियो में फेल हो जाता है। इसीलिए आशा करता हूँ कि आप समझ चुके हैं व्हाई डू वी नीड यूजर डिफाइंड फंक्शन नाउ। क्योंकि देखिए यूजिंग 5 फंक्शंस इन एक्सेल वी आर एबल टू फैच आवर नंबर्स। सो कोई भी डायरेक्ट फंक्शन एक्सेल में अवेलेबल नहीं है जो अभी हमारे करंट सिनारियो में हमें हेल्प कर पाए। इसीलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बिल्ड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर विजुअल एडिटर में, उस ऑल्ट F11 भी आप प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। अब यहाँ पर मुझे फंक्शन लिखना है, फंक्शन एक्सट्रैक्ट नंबर। नाम फंक्शन का आप कुछ भी दे सकते हैं। द मोमेंट आई प्रेस एंटर, देखिए एंड फंक्शन दिस लाइन ऑफ कोड ऑटोमेटिकली गेट जनरेटेड एंड विच मीन्स आई एम सपोज टू राइट माई कोड बिटवीन दीज टू लाइन ओनली। जी हाँ, इन्हीं लाइन के बीच में हम अपना कोड लिखने जा रहे हैं। बट एक बार ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज को समझ लेते हैं। देखिए इसके अंदर जब इसके अंदर होता क्या है, देखिए कोई भी अगर आप एक फंक्शन लिखते हैं इक्वल टू लेन ब्रैकेट स्टार्ट जैसे मैं करता हूँ, देखिए हमें उस टेक्स्ट का सेल एड्रेस पास कराना है जहां पर टेक्स्ट है, तो A2 which means in len function I passed cell address. Similarly in extract number also I need to pass a cell address. तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा cell address as range. Now in second line of code I will write for I equal to 1 to len. Again 1 टू लेन, देखिए वो सेम ही कंसेप्ट चलेगा। अब यहाँ पर सिंटेक्स डिफरेंट है और बट बात वही है जो हम करना चाह रहे हैं। देखिए 1 से लेकर उस सेल की लेंथ तक, किस सेल की लेंथ तक, अब जो भी सेल एड्रेस जो भी यहाँ पर है इसमें जो मैं सेल एड्रेस पास कराने जा रहा हूँ उसकी लेंथ तक। नेक्स्ट, अब ये देखिए ये एक दिस इज कॉल्ड लूप। ओके, अभी जो लोग VBA यूज करते हैं उन लोगों को पता है कि ये क्यों यूज करते हैं। ओके, बट समवन हु इज न्यू टू दिस विंडो एंड फर्स्ट टाइम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस यूजर डिफाइंड फंक्शंस, फॉर देम जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज हम वही काम कर रहे हैं 1 से लेकर उस सेल के अंदर जितनी भी लेंथ है, लेटर्स जितने भी लेटर्स हैं उनकी जो टोटल लेंथ है उनमें सबको हम 1 बाय 1 चेक कराएंगे क्या ये पर्टिकुलर लेटर वैल्यू है या टेक्स्ट है। अगर वैल्यू है तो उसको हम एक डिफरेंट बकेट में रखेंगे। अब देखिए कैसे रखते हैं बकेट के अंदर, इसको समझते हैं। अब यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। इफ, अब इफ क्या क्या चेक करेंगे हम चेक करेंगे कि नंबर है या नहीं है। तो आपको याद होगा हमने एक्सेल में वैल्यू के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म की थी जिससे हमें फाइनल नंबर्स मिल गए थे इफ एरर फंक्शन के साथ। ठीक है, तो वो चीज हमें यहाँ नहीं करनी है। हमारे पास एक डायरेक्ट फंक्शन होता है VBA में, इज न्यूमरिक ब्रैकेट स्टार्ट और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर मुझे अब यहाँ पर पास करना है मिड फंक्शन की जो कि हमें हर लेटर को निकाल के देगा। अब देखिए मैं पास करता हूँ मिड ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये इसकी ब्यूटी यही है कि ये जो VB एडिटर है केस सेंसिटिव नहीं है, जबकि पावर क्वेरी एडिटर केस सेंसिटिव है। अगर आप वहां जाकर कोड लिखते हैं जो कि अभी हमने देखा नहीं है, हम लिखेंगे जब देखेंगे उसे, तो वो केस सेंसिटिव है, वहां पर आपको ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे ही देखिए मैं अगर
अभी आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली आई कैपिटल हो जाएगा, एम कैपिटल ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे ही मैं सेकेंड लाइन ऑफ कोड में आऊंगा। ठीक है, तो ये ऑटो एडजस्टेड है, तो विच इज आई रियली लाइक कि फ्री हैंड में कोड टाइप कर सकता हूँ। ऑल्दो हमें पता है कौन सा जब करते करते हमें याद हो चुकी हैं चीज़ें, बट स्टिल मैं ये राइट करना चाह रहा हूँ आप, सो दैट आप इसे समझें। ये भी एक फंक्शनैलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है वीबी एडिटर के अंदर। ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मिड ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस, सेल एड्रेस कोमा, अब स्टार्ट एज लॉन्ग, देखिए तीन पैरामीटर्स, जो हमारा टेक्स्ट था उसके बाद स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये थर्ड पैरामीटर्स। ठीक है, तो तीनों पैरामीटर्स इसमें हम पास करने जा रहे हैं। अब पहला पैरामीटर हमने पास कर दिया है जो कि स्ट्रिंग है यहाँ पर लिखा हुआ, और एक्सेल के अंदर इस यहाँ लिखा हुआ था टेक्स्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मतलब सेम ही है। ठीक है, जस्ट आप देखिए नेक्स्ट पैरामीटर, नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है हमारी होने जा रही है आई। आई क्या है? आई देखिए लूप का ये मतलब होता है जब आपका कोड यहाँ पर जाएगा उसके बाद उस कोड को दोबारा उसी में जाना है, शुरू से स्टार्ट होना है फिर, क्योंकि वन से लेकर नंबर ऑफ लेंथ जितनी भी है उस उतनी तक, उतनी बारी तक उस लाइन ऑफ कोड को रिपीट होना है, तो यही लूप है। ठीक है जी, इसी को लूप बोलते हैं कि बार बार वो कोड जब तक चलेगा जब तक वो नंबर ऑफ लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसलिए हमने यहाँ पर किया आई, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर ये वन है। जब ये लाइन ऑफ कोड आप यहाँ पर आएंगे, जब हम अभी इसे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब आप इसे समझे पाएंगे और अच्छे से। आई कोमा वन करते हैं यहाँ पर, वन, ये हमने वहां पर भी एक्सेल में भी वन किया था कि हर एक एक लेटर को हमें चेक करना है, तो वन। ठीक है जी, अगर यहाँ टू कर देंगे तो दो लेटर्स को चेक करेंगे, वो तीन कर देंगे तीन लेटर्स को चेक करेंगे, बट हमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम वन लेटर को चेक कराना चाहते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, यहाँ पर वन ब्रैकेट क्लोज किया और सेकंड ब्रैकेट भी आप क्लोज कर देंगे जो कि इस न्यूमरिक का है। अब देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ को, यहाँ इफ स्टेटमेंट यहाँ आकर कंप्लीट हो जाती है। देखिए जैसे ही मैंने देन लिखकर एंटर प्रेस किया, आपने देखा आई कैपिटल हो गया, एन कैपिटल हो गया, यहाँ पर भी सभी चीजें वो कैपिटल होती चली गई। ठीक है, आप इसको इसको रिवर्स करके वीडियो को देखिएगा, ये आपको दिख जाएगा कि हाँ ये चीजें स्मॉल लेटर्स में थी अब ये कैपिटल लेटर्स में हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हमने फंक्शन को क्लोज किया था एंड फंक्शन के साथ, इसी तरह से इफ की स्टेटमेंट भी क्लोज होती है एंड इफ के साथ। ठीक है जी, तो अब इफ की स्टेटमेंट में अब जैसे हमने फंक्शन के अंदर जो भी कोडिंग कर रहे हैं वो हम फंक्शन के अंदर चल रही है, अब इफ के अंदर जो भी हमें कंडीशन डालनी है वो हमारी इफ स्टेटमेंट के अंदर ही रहेगी। बहुत ही सिंपल से लॉजिक होते हैं इसमें, सिंपल कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजी है अगर आप इसे समझते हैं थोड़ा सा समय लगाकर और थोड़ा सा इसको खुद से लिख कर देखते हैं तो आपको पता चल जाता है क्या चीज़ ये क्या बिहेव हो रहा है, किसके चेंज पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस तरह से आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए हम कहते हैं कि अगर मैं रिपीट करता हूँ, मैंने बोला है कि अगर इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू आई है निकल के अगर वो न्यूमेरिक है देन क्या करो। अब मैं उस वैल्यू को एक बकेट में रखने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर एक फॉर अ टाइम बिंग एक नाम दे देता हूँ, लेट्स से कलेक्ट नंबर, कलेक्ट नंबर। ओके मैं एक नाम डिफाइन किया है मैंने कलेक्ट नंबर के नाम से, तो उसमें मैं इस वैल्यू को रखने वाला हूँ जो भी वैल्यू निकल के आएगी। अब वो वैल्यू क्या निकल के आएगी, अब देखिए कलेक्ट नंबर मैंने दिया और मैं इस वैल्यू को करता हूँ कॉपी, इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ से करता हूँ इतने को कॉपी और इक्वल टू कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल वी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी यहाँ कर दिया। अब देखिए जो भी वैल्यू उस टाइम पर जब वो न्यूमरिक होगा वो वैल्यू यहाँ पर आएगी और वो वैल्यू को मैं यहाँ पर स्टोर कराऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब मान एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, अब देखिए जब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी वो होगी वन, तो यहाँ पर मिड फंक्शन से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आने वाली है एच। अगर आप देखेंगे एक्सेल में जाकर तो ये इसके अंदर से ये वैल्यू निकल के चेक होगी पहले कि एच, क्या ये वैल्यू इज न्यूमरिक है, तो जो नहीं है तो इसीलिए वो अंदर की इफ की स्टेटमेंट में ना जाकर बाहर से एग्जिट हो जाएगा और यहाँ से फिर नेक्स्ट, फिर अगेन फॉर सेकेंड टाइम, अब इसमें वैल्यू आएगी मिड के अंदर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आर, उसके बाद इफ फंक्शन चेक करेगा इज न्यूमरिक, आर इज न्यूमरिक,
नो। सो अगेन इसके अंदर ना जाकर यहीं से एग्जिट हो जाएगा और फिर अगेन नेक्स्ट, और ये सेम एक्शन रिपीट होता रहेगा जब तक कि लेंथ पूरी नहीं हो जाती, यानी 12 12 टाइम्स दिस आई वैल्यू विल गेट चेंज्ड। ओके, सो थर्ड टाइम्स अंडरस्कोर इसे मिलेगा, फिर वो भी वैल्यू नहीं है। फोर्थ टाइम में अगर आप देखेंगे हमें मिलेगा 3। अब यहाँ पर इस न्यूमरिक कहता है जब उसको अंदर वैल्यू मिलती है मिड के अंदर 3 कि जी हाँ यस इट इज न्यूमरिक। अब जैसे ही वो न्यूमरिक है यहाँ पर आ जाता है 3। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम उस वैल्यू को स्टोर करा देते हैं, 3 इसमें स्टोर कर लीजिए। नाउ दैट द वैल्यू हैज बीन स्टोर्ड इन कलेक्ट नंबर वेरिएबल, अब क्या होगा कि यहाँ से फोर्थ, यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी 5। 4 में तो हमें 3 मिल गया, और अब हो जाएगी आई की वैल्यू 5। अब जैसे ही आई की वैल्यू 5 होती है तो एक्सेल में देखते हैं एक बार, यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे 5 ही हमें मिल रहा है। ठीक है, अब इस बार क्या होगा, 5 की वैल्यू यहाँ पर आएगी और वो वैल्यू हम इसमें स्टोर कर देंगे। अब देखिए एक यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, जो आई वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर की थी 3, अब वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 5 के साथ, तो हमें उस वैल्यू को भी मेंटेन रखना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे इस वेरिएबल को और इसके यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, और इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे एंड के साथ। दैट्स ऑल, बस। फर्स्ट टाइम जब ये लूप रन होगा तो ये ब्लैंक होगा, जैसे ही इफ की स्टेटमेंट पास होती है ट्रू आती है तो ये वैल्यू हमें मिलेगी और ये वैल्यू हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, इस और ये वैल्यू हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और ऐसे ही जब ये वापस चलेगा लूप तो वो वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी और उसके साथ ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये कोड हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, इसका लास्ट स्टेप बच गया है जिसको मैं यहाँ से करने वाला हूँ। एक्सट्रैक्ट नंबर में अब हमें क्या शो करना है, एंड के अंदर एक्सट्रैक्ट नंबर इक्वल टू कलेक्ट नंबर, दैट्स ऑल। now guys, congratulations, you have built your first user defined function through VBA. Now we will write here equal to extract number. See, automatically extract number came, and now I just need to pass this cell, close bracket, enter. Now I'll drag this formula and see the result. So guys, if you see, everything we are able to fetch with the help of VBA. Okay, and again the same scenario, we cannot sum this value. So to sum this value, we will go in VB editor window one more time, and this time here I will write a function CSNG, start bracket and close bracket. Now actually what this function is for, let me tell you. SNG stand for string and C stand for convert. So string, which means text conversion function, I'm going to use it. Okay, so this function is going to convert this text into value, and this way if I go here and just press enter, now see, all other formulas got updated automatically and I am able to apply some function on this. So see, we have the same results, and how easy for a user to apply this. Now you guys can see here, user simply needs to write here extract number, no other complex formula, just close bracket, enter and drag, that's all. So with just this small formula you are able to achieve something which was very much complicated in Excel. That's how we have built our second solution. Hope you guys like this video. And guys, again, if you have any confusion, you have to practice. This is very much simple function. Now someone who is from coding background may think that I have not created any variable here. Well, मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो जाएं कि हाउ टू असाइन, हाउ टू डिफाइन, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज डेटा टाइप, इन सभी टर्मिनोलॉजी में वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैंने इसको सिंपल रखा है। ठीक है, बट जो
कोडिंग बैकग्राउंड से हैं वो जानते हैं यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को असाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट लेटर ऑन वी विल डिस्कस दैट हाउ टू assign and why we need that, but for a time being keep it as simple as I have shown you. Now the time is to introduce Power Query Editor. Let's build our final solution now. For that, first we have to change this data sets into table. So let me do one thing. Let me insert a column here. Okay, I will go here and press Ctrl T and click OK. Now this way I have converted this data set into table, and now see what I simply need to go in data tab from table and range and just wait. Power Query Editor. Now before I start building the solutions, let me tell you one more thing. When I say this tool is a hero of the film, it has a purpose. If you go with the general observation, we spend up to 80% of our time in data cleaning, which means if we keep cleaning our data, transforming our data, it delays the work of decision making. In the segment of 80%, this tool plays a vital role and makes our decision making faster. And we will see in couple of minutes. I can see here the column which we need to clean. Now it is a small data sets. Just for an example, I have kept here. It can be as big as you think. The steps will remain same as it is, okay, which I'm going to perform here. So see here in this interface, we don't have any functionality which can perform our task and get our job done with simple click. So we need to be thoughtful this time. In our presentation, I told you you should have functional knowledge to work in such cases. So for that, I will tell you what function can help us here. In this case, fetch these numbers into the another column. So I will go in add column. I will click here custom column. So in custom column, I am going to create a column and the name I am going to give, let's say extract number. Okay, and here I'm going to write a formula, and you know, as I told you, this is case sensitive, so make sure you write that formula in the right with the right syntax. So text, many functions we have related to text. So well, the functions which I'm going to use is this one, text dot select. What I want to select, so I want to select start bracket, and so if you see here, again I can see screen tip here. It might look complex right now. It is not at all complex. I'll make it easy. Okay, let me write here the column name. So if you see, text string is the column name, and I can see here also I can double click here. It will automatically get added here. Now comma, I am in the second argument now. Curly bracket, here I will write curly bracket 0 dot dot to 9, curly bracket close, and close final bracket. So now if you see, if I just go here and click OK, I will get an error, and I want to show you an error. Then after I will come and rectify that error. So let's click OK and see I'm getting error as expected. And now to rectify that, what I'll do, you see here the functions which we wrote there. Okay, that function is available here also in this formula bar. Okay, so we can directly correct here. So why I got that error, because 0 to 9 numbers we want to fetch from this particular cell, from each individual cell. That is why each word is available here. It automatically get inserted. It is kind of a keyword. In our Excel we passed cell address, but here I pass column name, and as soon as I pass column name, so this each automatically got inserted, and it will actually refer to each individual cell and give me the output. Now let's talk about the error, why we are getting error. So here what I need to do, I need to put this 0 in double quote, and I need to put this 9 also in double quote. Why I am doing it? The reason, because here it is a text, that's all. And now you can click here and your work is done.
Now if you see guys, we are able to fetch the numbers from this column, and the data type of this number is right now text, but we will change it. We will click here and we will make it whole number. So just click whole number, and that is how it is done. Okay, so this way now you simply need to go in home tab and close and load to where you want to load. Well, let's say I want to load it to this place, and let me just click here. Click OK. So now we are done with the third solution, Power Query Editor. So this way guys, we have seen all three different solutions to extract numbers, and I hope you like this video, and thank you very much for watching this video. Hope to see you next time. Take care. Bye for now.